हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे ना बेटा? Yes. Okay, so I'll just go on the test paper. We did up to what question number? 37 I guess हमने कर लिया था या 34 क्या किया था? 34 I remember. 34. Okay, so we'll go with 35 then. 35 से करते हैं discuss. A charged particle q is shot towards another charged particle capital Q which is fixed with a velocity of v. It approaches capital Q up to a closest distance r and then returns. If q is shot with a velocity to v, then the closest distance of approach will be. So I'll go on the whiteboard. So हमें question में दिया है that I have a capital Q charge plus of capital Q, okay, and the small q charge, और ये fixed है by the way, so ये charge आपका fixed है, this charge cannot move, so ये आपका fixed charge है. दूसरा चार्ज है लेट्स से इसका मास स्मॉल m kg है और इसके ऊपर चार्ज दिया आपने q मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया बहुत लंबे डिस्टेंस है तो ये इधर आ गया और इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है? स्मॉल r, मतलब पार्टिकल यहाँ पे आके रुक गया होगा. सो दिस इज माय पॉइंट A एंड दिस इज माय पॉइंट B. नाइशा आप मुझे एक बात बताओ बेटा, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है क्या? Is there any kind of non-conservative force acting between point A and point B? Non-conservative का मतलब हो गया friction and all. कोई ऐसा force लग रहा है? No. So obviously mechanical energy will remain conserved. So whatever mechanical energy I have at point A, the same mechanical energy will be there at point B, because बीच में कोई भी resistive force यानी non-conservative force act नहीं हो रहा है. Therefore mechanical energy will remain conserved. So can I say that mechanical energy at point A will be same as the mechanical energy at point B, which implies kinetic energy plus potential energy at point A will be equal to kinetic energy plus potential energy at point B. Now ये बहुत far distance पे था, so therefore यहाँ का potential 0 होगा. Only I'll have here at point A is kinetic energy. और यहाँ पे आने के बाद ये रुक गया, so kinetic 0 हो गया. Only we have is electrostatic potential energy 1 by 4 pi epsilon naught capital Q into Q by R. ये रिलेशन होगा ना? Is it clear? Now if you solve it, this 2 will get cancelled. R को अगर आप इधर शिफ्ट कर दो, so R कितना हो जाएगा? Q into Q by pi epsilon naught mv square. Is it clear? तो यहाँ पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी था, दिस काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ओवर हियर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हियर. जस्ट बैलेंस किया हमने. नाउ सेकेंड केस में क्या होगा? आपने सेम चार्ज पार्टिकल को अभी फिर से फायर किया है, बट नाउ विद द वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ v. सो फिर से काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m ट्वाइस ऑफ v का स्क्वायर. अच्छा यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, 2 pi epsilon naught. Half this will be equal to electrostatic potential energy, which is 1 by 4 pi epsilon naught q into q. Now closest approach का आप r dash पकड़ लो. So closest approach जो है पहले r था, now we have taken it r dash. So what will happen now? This is ये 2 से cancel हो जाएगा, 4 of mv square q into q r dash. If I shift here r dash here, q into q by 2 pi epsilon naught mv square into 4. So if I rearrange it, so I can write this as 1 by 4 by q into q 2 pi epsilon naught mv square. Now instead of q into q 2 pi epsilon naught mv square, I can write r here, which means that r dash r by 4.
इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? ऐसा आपको आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? हाँ सर। वेरी गुड, ऐसे ही किया था। नहीं सर, काइनेमेटिक इक्वेशंस। हाउ कैन वी अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशंस हियर बेटा? यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर नहीं, मैंने काइनेमेटिक इक्वेशंस में लिखा और फिर स्पीड को जब डबल किया तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। कैन आई यूज काइनेमेटिक इक्वेशन हियर? हम यूज कर सकते हैं क्या काइनेमेटिक इक्वेशंस? यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है फोर्स? जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल पास में आएगा आर विल चेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है आर। तो चार्ज पार्टिकल अगर नजदीक आएगा तो आर चेंज करेगा, अगर आर चेंज करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज करेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज करेगा मतलब एक्सीलरेशन चेंज करेगा। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन वेरिएबल है मेरा, एंड काइनेमेटिक इक्वेशंस कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा उस केस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा ना। काइनेमेटिक इक्वेशन तो तब लगाएंगे व्हेन माय एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ या ना? मैं ऐसा समझा मैंने क्या बोला? अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल नजदीक आएगा फोर्स चेंज करेगा, बिकॉज आर चेंज हो रहा है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा आर चेंज करेगा, सिंस आर चेंज करेगा तो फोर्स चेंज करेगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, एंड काइनेमेटिक इक्वेशंस कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगाते हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। यस और नो? ऐसे समझ में मैंने क्या बोला अभी थोड़े से? या ओके, आंसर आ गया होगा, दैट इज ओके, बट द लॉजिक वाज नॉट करेक्ट। शुभम एनीसी So का why did you take potential energy at A as 0? बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि ये चार्ज पार्टिकल बहुत दूर से हमने फेंका है, सच दैट किसके इन्फ्लुएंस के बाहर से फेंका है, राइट? सो देयरफॉर आई हैव एज्यूम्ड कि ये बहुत दूर से फेंक रहे हैं। Got it, सो got it. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। शुभम, इज इट क्लियर? Yes. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So for answer it will be option number A, please. Okay. So can you show the working ones? Okay. Yeah, sir. Okay. इशिता क्लियर बेटा, समझ गया? Yes, sir. Okay. We'll go to the next problem then. Question number 36. A charge particle is placed at the corners of a square of side A as shown in the figure. Charge A is in equilibrium. The ratio of Q1 by Q2 is, so Q1 और Q2 का रेशियो आपसे पूछा गया है, कह रहा है पॉजिटिव, स्क्वायर है बाय द वे। Okay, so let me have this problem. मेरे पास एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर का sides we have taken as A, B here, and here I have D. ठीक है, plus Q1 minus Q2 plus Q1. So here I am having plus Q1 minus Q2 minus Q2 plus Q1.
सो Q1 by Q2 का रेशियो पूछ रहा है, चार्ज A इज इन इक्विलिब्रियम. Okay. So find ratio of Q2 such that charge at A is in equilibrium. ठीक है. नाउ सी कैसे अप्रोच करेंगे इसको. ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल अप्लाई अट्रैक्टिव फोर्स. ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F2. एंड दिस इज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F3. नाउ इफ इट इज A, दिस इज A, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, √2a. तो पहले तो हम F1 का वैल्यू लिखेंगे. F1 विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by A square. लाइकवाइज हम लोग F2 निकालेंगे. F2 भी सेम होगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by A square. Now F1 और F2 they are perpendicular, so इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा. लेट्स से F dash. So F dash कितना होगा, by the way this is F1 square plus F2 square. So if I solve it, F dash will be equal to what, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by A square into what, √2. Now F3 निकालेंगे from here. So what will be my F3 now, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q1 by √2a का whole square, because this distance is √2a. So if we solve it, F3 1 by 4 pi epsilon naught, it is again Q1 square by twice of A square. ठीक है. अब अगर A वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, चार्ज एट A is in equilibrium, hence क्या लिख सकते हैं हम लोग, F3 will be equal to what, F dash. अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो F3 F dash के बराबर होगा, which means F3 कितना है बेटा इस केस में, ये रिजल्ट हो गया ना, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 square by twice of A square. So I'll write in the separate page. ठीक है, इक्विलिब्रियम में था, सो जितना फोर्स इधर लगेगा F3 that will be balanced by F dash here. So F dash, अगर आप यहाँ से देखोगे तो F dash हमारा F3 के बराबर था. So F dash was equal to what, F3 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by A square into √2. This is what we have F dash here. 1 by 4 pi epsilon naught Q1 square by 2A square. Q1 था, एक Q1 से Q1 cancel हो गया, A square and A square will get cancelled. So I have at the last √2 into Q2 Q1 by 2. So आपसे पूछा गया है Q1 by Q2 का रेशियो, that is 2√2. अच्छा ऑप्शन क्लियर है पॉइंट ये. आंसर इज देयर इज ओनली इन √2 फॉर्मेट. पर क्या क्या कैलकुलेशन. ठीक है, ऐसा आया था आपका आंसर. हाँ सर. गुड. सुबह तुम्हें समझ गया अच्छे से.
यस। आंसर आया था आपका खुद से? हाँ। ओके, इशिता आपका? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 गुजरात सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सर उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? हम मैच नहीं कर रहे बेटा, ऑप्शन में एरर है इसका। The answer is this root 2, but that is not correct. It should be 2 root 2. Is it clear? समझा नहीं सर? Yes. Okay, I'll go to 37 number. You'll get bonus marks for this question. 36 के लिए. A charge Q is placed at the center of a line joining two equal point charges, each equal to capital Q. The system of three charges will be in equilibrium. This Q is okay. अपने सेंटर पे रखा है along the line joining two charges capital Q. गुड क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। सो आपको क्या क्वेश्चन में दिया है दैट वी हैव टू चार्जेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ऐसे हो गया, डिस्टेंस दोनों के बीच का डी ले लो। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कैपिटल क्यू है, कुछ भी नहीं दिया तो कैपिटल क्यू होगा। इसके सेंटर पे आपने चार्ज रखा है विच इज ऑफ स्मॉल क्यू। तो मुझे स्मॉल क्यू ही चाहिए कैपिटल क्यू के टर्म्स में, ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस कितना लिया आपने? डी। तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा? d/2। नाउ सी, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस इस वाले प्लस पे रिपल्सन का फोर्स जनरेट करेगा विच इज माय F1। अगर ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये वाले चार्ज को इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाना चाहिए विच इज माय F2। अगेन आई विल रिपीट, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अप्लाई द रिपल्सिव फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज F1। अगर ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है सो देयरफॉर दिस चार्ज हैज टू अप्लाई द अट्रैक्टिव फोर्स, इधर लगाना चाहिए इसको F2, तभी तो बैलेंस होगा ना। और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब ये वाला चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। ये तो श्योर शॉर्ट हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, दैट इज माय F1। अगर ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स तो जीरो तभी होगा ना जब ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, इसका मतलब कि अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन होने के लिए ये चार्ज क्या चाहिए? वी वांट टू हैव दिस चार्ज एज व्हाट? नेगेटिव। हमें ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वाला चार्ज पार्टिकल नेगेटिव नहीं होगा तब तक अट्रैक्शन का फोर्स कैसे लगेगा? तो एक पॉइंट तो इधर से क्लियर है दैट Q1 शुड बी नेगेटिव। इज इट फाइन? ऐसा क्लियर है ना पॉइंट कि Q शुड बी नेगेटिव इन दिस केस। अब पहले F1 लिखो, व्हाट विल बी F1 हियर? D square, right? If you write this, ये F1 हो गया हमारा। नाउ लाइकवाइज हम लोग F2 पे बात करेंगे। F2 कितना होगा? 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई d/2 का होल स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा? 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q d स्क्वायर बाई 4, दिस विल गो अप। F2 कितना हो गया? 4 इंटू 1/4πε0, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम दिस F1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? F2। So we can say for equilibrium F1 किसके बराबर होगा? F2 के बराबर, implies 1/4πε0 Q square by D square 4 into 1/4πε0 Q into Q by what?
डी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर विल गेट कैंसिल। सो मैग्नीट्यूड वाइज हमें समझ में आ गया कि कैपिटल क्यू इज स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू बाय 4, बट मुझे पता है कि इट शुड बी नेगेटिव, तभी अट्रैक्शन लगेगा। सो इज ये आंसर। एम आई क्लियर? शुभम समझ में आ गया नेगेटिव क्यों लिया बेटा मैंने यहाँ पे? वाई हैव Yes. टेकन? ओके, इसी तो आपको समझ गया मैंने नेगेटिव क्यों बोला इस चार्ज को? यस क्योंकि ये इस पे रिपल्सन लगा रहा था और मुझे इसको इक्विलिब्रियम में करना है, मतलब ये इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। अब ये चार्ज इस पे अट्रैक्शन का फोर्स तभी लगाएगा व्हेन इट इज नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो इट वुड हैव अप्लाइड द रिपल्सिव फोर्स, तो इक्विलिब्रियम आने का चांस ही नहीं। इक्विलिब्रियम तो तब आएगा ना जब वो अट्रैक्टिव लगेगा, और अट्रैक्टिव तब लगेगा जब ये चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर प्रॉपर्ली? ऐसा आंसर आया था तुम्हारा इस प्रॉब्लम का? हाँ सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. We have a circuit here. So a 3 volt battery with negligible internal resistance is connected in the circuit as shown in the figure. The current I in the circuit is, so हमें यहाँ पे करंट पता करना है. Let me plot the circuit. Here we have a battery of 3 volt. ऐसा हमारा सर्किट कनेक्ट किया है, 3 ओम का है, 3 ओम का है। ना अगर आप देखोगे तो यहाँ से करंट पास करना चालू किया सर्किट में, दिस करंट इज ऑफ आई एम्पियर। करंट रीच्ड हियर, यहाँ पे आने के बाद करंट बाइफरकेट करेगा I1 में और I2 में। नाउ इफ करंट इज गेटिंग बाइफरकेटेड, इसका मतलब क्या होगा? दैट ये जो रेजिस्टेंस, 1 सेकेंड होल्ड, सॉरी। सो करंट यहाँ से पास किया आई एम्पियर का, रीच किया, यहाँ पे आने का करंट बाइफरकेट कर गया। सो इधर करंट गया I1 एम्पियर का, इधर भी करंट क्या है? I1 एम्पियर का। सो दिस लाइक दिस करंट विल कम हियर, I2 इधर आ गया। नाउ इसमें I1 प्लस I2 विच मीन्स I एम्पियर का करंट इधर आ गया। नाउ मुझे एक बताइए, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, हाउ दे आर कनेक्टेड? ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में? सो लेट मी हैव दिस एज R1. सो R1 कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 ओम। नाउ दिस R1 और ये 3 ओम कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, सो विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R 1/R1 plus 1/3, that implies 1/R 1/6 plus 1/3,
1 by r, if you take the LCM here 6 हो जाएगा, 1 plus of 2, r कितना हो जाएगा 3 by 6, that implies r will be equal to what 2, है ना. So ये 3 ohm और ये 3 ohm 6 ohm हो जाएगा, और ये 3 ohm 6 ohm और ये 3 ohm they are in parallel, so 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by 3. So if we solve it we got 2 ohm here, right. So अगर आप 2 ohm आपको मिल गया, and if you want to get the current, हम यूज क्या करेंगे सर्किट में, V is equal to I into R. So वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस 2, so करंट हो जाएगा 3 by 2, 1.5. That means current will be equal to 1.5 ampere. Is it clear with the answer? समझ गया अच्छे से? ऐसा आपका आंसर आया था इस प्रॉब्लम का? नाइस है. Have you got the answer for this question? 3 by, okay. इशिता आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके. शुभम तुम्हें आया था? Yes, sir. ओके, चलो मूव अहेड. Okay, so answer is B, which is 1.5 ampere. Next चलेंगे, next circuit. So we have a battery here of 6 volt और हमें करंट चाहिए 1 ohm रजिस्टर में. तो सर्किट हमारा ऐसा है. तो इस केस में सर्किट देखो, यहाँ पे एक बैटरी है, ऐसे आपने सर्किट में कनेक्ट किया है. यहाँ पे एक बैटरी हमारा 6 वोल्ट का 1 ohm का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 4 ohm and 4 ohm here. So we have रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm इधर और 4 ohm इधर. अब देखो यहाँ से करंट पास किया, इधर करंट चला गया और करंट इधर आ गया. सो ऑब्वियसली ये 4 ohm और ये 4 ohm दे आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल, क्योंकि करंट यहाँ से पास किया आई एम्पियर का. देखिए यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे आने के बाद करंट गेट्स बाइफर्केटेड हियर I1 एंड I2. नाउ करंट डिवाइड हो गया, सो दिस 4 ohm रेजिस्टेंस एंड ये 4 ohm रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. So 1 by R is equal to 1 by 4 plus 1 by 4. So 1 by R LCM लोगे तो कितना आ जाएगा 4, this is 2 here. So R will be equal to what 2 ohm. ये 2 ohm हो गया. Now ये 2 ohm के साथ ये जो 1 ohm है, it is connected in series. तो अगर आप R equivalent निकालोगे 2 plus 1 होगा, R equivalent होगा 3 ohm. I will use V is equal to I into R. वोल्टेज हो गया 6, करंट 2 हो गया. So from here current will be equal to what 2 amperes. था आंसर? Yes. ओके गुड. नाइशा आपका आंसर था इस प्रॉब्लम का 2 एम्पियर. Yes. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसी तरह समझ गया अच्छे से कैलकुलेशन? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. हाँ, इट्स एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन. अच्छा सवाल है. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट? इसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. आई विल रीप्लॉट द सर्किट. ऐसे हमारा एक पॉइंट हो गया. इसे वायर से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस पूछ रहा है.
वी हैव सी डी एन ई हियर, इधर हमारा पॉइंट है सी डी एन ई, ओके। 2 ohm 2 ohm 4 ohm इधर दिया है आपको 4 ohm here, then we have 2 ohm इधर, then we have 4 ohm, here we have 2 ohm, and here we have 8 ohm. So we have to get the equivalent resistance across A and B. Equivalent about A and B. So A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। नाउ यहाँ से करंट पास होगा, सो ये दोनों सीरीज में बाय द वे, सो दिस 2 ohm and this 2 ohm will be in the series, राइट। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 4 ohm। नाउ ये 4 ohm और ये 4 ohm आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ दिस 1/4, इसका इक्विवेलेंट आप मान लो r डैश, r डैश कितना हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। सो इफ यू सॉल्व इट, r डैश कितना मिलेगा आपको, इज इट इक्वल टू 2 ohm, होगा 2 ohm। Yes. नाउ इन सब का जो इक्विवेलेंट आपको मिला 2 ohm, अब ये 2 ohm और ये 2 ohm आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। सो दिस 2 ohm एंड दिस, ये 2 ohm वाज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट। सो ये 2 ohm और ये 2 ohm आपस में कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में, व्हिच इज 4 ohm। नाउ ये 4 ohm और ये 4 ohm, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ, अगेन इन Parallel. हाँ, so it will be now 2 ohm। now this 2 ohm and this 2 ohm, how they are connected, series, which is again equal to what 4 ohm। अब ये 4 ohm और ये 8 ohm they are in parallel। so lastly अगर हम करेंगे इसको सॉल्व इक्विवेलेंट के लिए, so 1/r इक्विवेलेंट 1/4 1/8, एलसीएम लोग होता आएगा 8, 2 + 1 3/8 r 8/3। we clear a point calculation? Yes. Very good, nice, have you got the answer for this question 8/3 ohm? Yes. इसी तो आपको आया था, Yeah. ओके फाइन, समझ गया ना अच्छे से कैलकुलेशन कैसे किया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये हो गया, ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 41। if same current I passing through two parallel wires separated by distance b, then force per unit length will be, क्वेश्चन में देखते हैं। same current I passing through two parallel wires separated by distance b, so we have two parallel wires, एक वायर इधर है, दूसरा वायर इधर है, like this, और दोनों में करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, आई एम्पियर इधर भी, आई एम्पियर भी, और दोनों के बीच का सेपरेशन व्हाट दे हैव गिवन अस इज b। टू पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस b, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, क्या रिलेशन लगाओगे, पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने बताया था। सो लेट मी हैव दिस एज वायर 1, हमें पता है एक्शन रिएक्शन फोर्स जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, दे आर इक्वल एंड इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। हेलो, डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे, सो कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा।
तो पहले आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, बी कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। याद करो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी डिराइव भी किया था मैंने। सो इस वायर 1 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। हमें फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ। सो इफ यू रिमेंबर फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। नाउ ये वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द स्क्रीन। तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। सो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री होगा थीटा। इफ यू गेट द फोर्स हियर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी इंटू आई टू एल into what, sin of 90 degree, sin 90 will give us 1. So magnetic force कितना लगा, mu naught by 2 pi I square by d into L। हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, so force by length mu naught by 2 pi I square by d होगा। ऐसा आंसर था आपका इस प्रॉब्लम का। नाइस। अभी समझा कैसे किया, हाँ एंगल समझ गया, थीटा 90 हाउ आई हैव टेकन। यस I'll repeat again, ये इसमें करंट ऊपर जा रहा था, so current if it is going up, so because of this conductor magnetic field will be inside, and I hope you remember कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, that conductor will experience a magnetic force, and the magnetic force experienced by conductor is given as BIL sin theta, where I is current, B is magnetic field, L length हो गया, and theta is the angle between length and magnetic field, which is of course 90 in this case, क्योंकि लेंथ वेक्टर ऊपर था और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो थीटा विल बिकम 90। शुभम क्लियर? Yes. ओके, गुड क्वेश्चन। इसी तरह आपको समझ गया बेटा? यस चलो लेट मी मूव फॉरवर्ड। So correct answer is option number A. They have given 4 pi here, but ऊपर में उन्होंने 2 दे दिया, so इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है। Question number 42. When current is passed through the circular wire prepared from a long conducting wire, the magnetic field produced at its center is B. Now the loop has been given 2 turns, is prepared from the same wire. Okay. So पहले आपका एक वायर था, इसको आपने सर्कुलर फॉर्मेट में कर दिया है। सो लेट मी हैव कि जो मेरा वायर था ना, इस वायर का लेंथ को मैंने L पकड़ लिया। सो व्हाट इज L हियर, लेंथ ऑफ वायर, और इसको आपने एक सर्कुलर फॉर्म में दिए, कन्वर्ट कर लिया है सच दैट ये सर्कुलर फॉर्म का रेडियस कितना दिया है, R। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई R इज इक्वल टू L। R कितना हो जाएगा, L बाय ट्वाइस ऑफ पाई। फर्स्ट केस के लिए बात करें तो सेम करंट इज पास, मान लो इसमें करंट I एम्पियर का पास किया है। So if I want to get the magnetic field at center, कितना हो जाएगा magnetic field at center, mu naught I by twice of T। याद है फॉर्मूला, mu naught n I r square by 2 into r square plus x square is to power 3 by 2 होता है। सेंटर पे बात करेंगे तो mu naught by the way ni होता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी लेते हैं हम लोग, 2r। सो एक ही टर्न है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना दिया था हमें, b दिया इस क्वेश्चन में। सो दे हैव गिवन अस b हियर इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक ही टर्न लिया है आपने, इनटू करंट I बाय ट्वाइस ऑफ r की जगह पे हम प्लेस करेंगे L बाय ट्वाइस ऑफ I। नाउ माय मैग्नेटिक फील्ड हियर म्यू नॉट 2 पाई इनटू I
बाई ट्वाइस ऑफ एल हो जाएगा। इसको अपने पास होल्ड करके रखते हैं। अब क्या कह रहा है कि सेम वायर को आपने 2 टर्न्स में बना दिया, सो ऑब्वियसली छोटा बनेगा 2 टर्न लगाओगे तो, है ना। ऐसे करके आपने 2 टर्न्स में बना दिया इसको। सो इफ आई मेड इट 2 ट्वाइस, 2 टर्न अगर इसका ले लोगे आप ऐसे, तो पहले तो एक ही टर्न में था तो रेडियस कंपैरेटिवली बड़ा होगा, अभी हमने 2 टर्न कर दिया तो रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप एक बार टर्न किया 2 पाई आर, दूसरी बार टर्न किया तो वापस से 2 पाई आर। सो कैन आई से 2 पाई आर, इसका जो रेडियस होगा वो L बाय 4 पाई के बराबर होगा। नाउ वी वांट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यू सेंटर हियर C डैश, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, राइट। सो वी वांट टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड हियर। कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एट सेंटर? म्यू नॉट N I बाय ट्वाइस ऑफ R। नाउ 2 टर्न लिया है, करंट वापस से वही है I, बट रेडियस वी हैव इज L बाय 4 पाई। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यू सेंटर? 2 लूप करने के बाद ये 4 को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट 2 पाई I by twice of L. This 4 we have taken outside. Now इसकी जगह पे we can take the magnetic field earlier जो हमारे सेंटर पे था 4 times of it. Am I clear? ऐसा आंसर आया था आपका इस प्रॉब्लम का? Yes. कर लिया था? You did the same way Yeah. जैसा मैंने केवल किया था? Sir, I found R dash is equal to R by 2. Okay, हाँ, that will also work. शुभम, इशिता, both of you किया था आपने सॉल्व पहले? Sir, I didn't get this. Okay, is it clear now? भी समझ गया? Yeah, sir. Good. शुभम, what about you? Yes, I got it. Okay. Good question, huh? Very good question. इजी था बट आपके लेवल पे बहुत अच्छा है। आपके लेवल पे क्या, नीट पे भी बहुत अच्छा है। द करेक्ट आंसर इज 4B. Go to the next one, question number 43. A circular conductor of radius 5 centimeter produces a magnetic field of 7 into 10 raised to power minus 6 Tesla. सेंटर पे ही होगा, ऑफ कोर्स, कुछ दिया नहीं है तो flowing through it. So we have a turn here, single turn है, इसका सेंटर है, रेडियस दैट आई हैव इज R here, और R दिया हमें 5 सेंटीमीटर, करंट आपसे पूछ रहा है। They have given us the value of radius 7 into 10 raised to power minus of 6 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, चलो करते हैं। हमें पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय N I बाय ट्वाइस ऑफ R। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 7 into 10 raised to power minus 6, और म्यू नॉट होता है 4 पाई टू 10 raised to power minus 7, एक ही टर्न है। So we'll convert that into meters. .14 this minus से हो जाएगा -1, by the way this will go this side, 7 into 10 raised to power minus 7 by 4 into 3.14 into 10 raised to power minus 7 is equal to current. So current कितना हो जाएगा?
7/4 into 3.14 that much एम्पियर. थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें. So if I check the calculation of this, so 7 divided by 4 into 3.14, so give us 0.55. So the current here will be 0.55 से मतलब 0.56 to be more precise. So current I have is 0.56. Is it clear with the calculations? नाइस आंसर आया था आपका इस प्रॉब्लम का. नाइस. अभी क्लियर है? हाँ, I used Ampere circuit. हाँ, yeah. Directly also we have the formula. If you want to derive it, we can derive it by Ampere circuit alone. No, but center wasn't given. हाँ हाँ, कुछ नहीं दिया, so by default we have to take it center. Obviously information देना चाहिए था question. I agree. चलो, I'll move forward. D option is right. Question number 44. Proton alpha particle are projected perpendicular to the magnetic field. If both move in a circular path with the same speed, the ratio of their radii, same speed के साथ जा रहा है. So we have one proton here और हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है. What is alpha particle? हाँ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इशिता, any idea? ऐसा कोई आइडिया अल्फा पार्टिकल क्या होता है? Helium atom. Not atom, helium nucleus. Alpha particle is only the nucleus of helium. Yeah. Now let's say प्रोटॉन का चार्ज आपको ऑलरेडी पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है. So let me have that as E. और एक प्रोटॉन का मास भी आपको पता होगा 1.67 into 10⁻⁻27 kg. तो मैं एक प्रोटॉन का मास को m पकड़ लेता हूँ. Now हीलियम के न्यूक्लियस में अगर आप बात करोगे, so it will have 2 protons and 2 neutrons. और न्यूट्रॉन का मास भी कंपैरेटिवली प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है कंपैरेटिवली. हीलियम न्यूक्लियाई इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. और हीलियम के न्यूक्लियस में वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है. सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2 बिकॉज 2 प्रोटॉन है, और इसका मास होगा 4m बिकॉज 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, याद करो हमने प्रूव किया था कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन, और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको आपने वेलोसिटी दे दिया v मीटर पर सेकंड से, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा. डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल. और इस चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो r है ना. याद करो इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में फोर्स कितना लगेगा? q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और दिस इज q v p इंटू साइन थीटा. वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, सो थीटा एंगल ऑब्वियसली 90 है यहाँ पे. QVB तो साइन ऑफ 90 डिग्री. और मैंने आपको बोला था कि यही जो फोर्स होगा, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r साइन 90 इज 1. सो v एक v से भी एलिमिनेट हो गया. सो v कितना हो जाएगा? सो r हमें चाहिए फाइनल. So we had from here mv by r. So r कितना होगा? mv by qb. So हमें रेशियो निकालना है, प्रोटॉन बाय अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना है. So for proton if we say
सो रेडियाई ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन m इंटू वेलोसिटी v, चार्ज इसका हो जाएगा E into magnetic. And they are saying कि both the particles, whether it is alpha particle or proton, they are moving with the same speed. तो speed same रहेगा. Alpha particle का कितना होगा mass, 4m into v. So radius of alpha particle, हमें पूछा गया है radius of proton by radius of alpha particle, mv by eb over twice of mv by eb. Now this E and V will get cancelled. Sorry, V नहीं है, V है magnetic field. कैंसिल हो गया, mv और mv भी कैंसिल हो जाएगा. So that implies कि radius of proton is to radius of alpha particle is 1:2. Am I clear? नाइस आंसर आया था आपको इस प्रॉब्लम का? हाँ. कर लिया था? गुड. शुभम और इशिता दोनों को क्लियर है? Yes. 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 आंसर आया था बेटा खुद से? No, sir. ठीक, अभी समझा ना अच्छे से कैसे कैलकुलेट किया इसमें? Yes. गुड, आगे बढ़ते. Question number 45. A charge is fired through a magnetic field. The force acting on the charge is maximum when the angle between the direction of motion of the charge and field is. ये तो easy question है, theoretical था ये. हमें ऑलरेडी पता है कि जो फोर्स लगता है इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पे कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, QVB इंटू वॉट, साइन थीटा. अगर फोर्स को मुझे मैक्सिमम करना है, QV और B को हम चेंज कर नहीं सकते, दैट इज वी हैव टू कीप कांस्टेंट. सो अगर मुझे फोर्स को मैक्सिमम करना है, सो फॉर दैट साइन थीटा मेरा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1. सो दिस मींस कि थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 90 डिग्री. Am I clear? So अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर आप 90 डिग्री लोगे तो ही आपका फोर्स मैक्सिमम मिलेगा. तो बहुत इजी सवाल. क्लियर है पॉइंट? नाइस आया था ना ये आंसर? हाँ. ओके. शुभम एंड निशिता, बोथ ऑफ यू क्लियर? Yes. सो टेस्ट पेपर डिस्कशन खत्म हो गया हमारा, डिस्कस करके पूरा. एंड यूनिट डायमेंशंस का कर लिया था हमने. आई गेस मैंने काइनेमेटिक्स आपको बोला था ना करने के लिए. क्या करने को बोला था? मोशन इन वन डायमेंशन ना, जेई वाला असाइनमेंट से. What, sir? जेई वाला असाइनमेंट जो था एडवांस का, उससे क्या करने के लिए बोला था मैंने? मोशन ना, Sir, कब बोला? एक लेक्चर में बोला था ना. यस, ऐसा बोला था कि नहीं? Sir, संडे को बोला तो मैं. अच्छा हाँ, तुम नहीं हो गए. ऐसा सॉल्व करने के लिए बोला था क्या असाइनमेंट मोशन? सर आई डोंट नो. नहीं किया ट्राई आप लोगों ने? नहीं. ओके. तुमने किसी तो हैव यू ट्राइड सॉल्विंग दैट? Sir. नहीं किया है, क्लास में करते हैं. वी हैव टाइम, तो एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगा. एज आई इन्फॉर्म कि दिस सैटरडे आल्सो विल बी हैविंग अ टेस्ट. वो टेस्ट का डिस्कशन होने के बाद विल स्टार्ट विद सर्कुलर. अब ये बहुत प्रैक्टिस हो गया, आई गेस 200 प्रॉब्लम्स के आसपास हो जाए करके. नेक्स्ट नाउ वी कैन गो विद सर्कुलर. I'm just sharing the screen.
Just a second. One second. Could not open this. 40 SG advanced RTG. Yes, you got it. Fine. Can everyone see the screen? दिख रहा है शेयर्ड फाइल? इसमें हमने ये वाला कंप्लीट किया था डिस्कस करके, पेपर्स एडवांस किया। हाँ, यूनिट डायमेंशंस ये असाइनमेंट हमने खत्म किया था, इसके मेंस के आर्काइव भी किया था और एडवांस का भी किया था। एंड आई होप आई रिमेम्बर मैंने आपको ये करने के लिए बोला था। फाइन, नहीं किया तो कोई बात नहीं, विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। कहाँ से करें? एमसीक्यू से करते, इसके पहले का आप खुद से ट्राई करो इजी प्रॉब्लम्स के साथ। सो विल गो विद दिस एमसीक्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 1983 फॉर 1 मार्क्स इट इज। नहीं, ये नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ा नहीं स्विमिंग वाला क्वेश्चन। गो विद दिस क्वेश्चन नंबर, एक मिनट चेक करने दो, बोट रिवर भी नहीं किया था हमने। हाँ, यहाँ से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। 1 2 विल नॉट अभी नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज फॉर दैट वी नीड अ कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 करो। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? आयशा, कैन यू सी द क्वेश्चन नंबर 3? Yes. ओके, गो विद इट। आई विल होल्ड फॉर अ मिनट। आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, फिर डिस्कस करेंगे एक साथ। I'll give you 2-3 minutes time to solve question number 3 and 4. Do it.
करे सॉल्व इसको, हुआ सॉल्व? नहीं सर, 3 और 4? हाँ ओके, 3 करते हैं पहले. In 1 second, particle goes from point A to point B, moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of average velocity. Okay, so this is a semicircular path here. So question में ऐसे दिया हुआ है that हमारे पास एक सेमी सर्कल है. इसी तरह आपका आया था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. No, ऐसे sir. अच्छा, ये नीट ने भी पूछ रखा है सर 2-3 साल पहले ही सेम टाइप का क्वेश्चन. रेडियस 1 मीटर दिया है और 1 सेकेंड लग रहा है इसको टाइम. नहीं, इससे थोड़ा टफ पूछा था और टाइम भी हमें दिया है 1 सेकेंड, राइट. सो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी. फाइंड एवरेज वेलोसिटी. शुभम आपको आया था बेटा इसका आंसर? ओके, ये होना चाहिए था, कुछ नहीं इस प्रॉब्लम में. पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, बी के ऊपर गया. सो नाउ दैट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा मेरा दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. सो पार्टिकल ए से भी गया तो यहाँ पे 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर. सो एवरेज वेलोसिटी will be displacement 2 by time 1, which implies कि average velocity जो होगा after solving this will be nothing but 2 meter plus. ये आंसर था नहीं सर? yes ओके गुड, सिंपल सा प्रॉब्लम. पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंड दिस वी हैव 1 मीटर हियर. ये भी हमारा 1 मीटर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर प्लस 1 मीटर विच इज 2 मीटर्स. सो average velocity is total displacement 2 by total time 1. Therefore, average velocity is 2 meter per second. Now, coming to question number 4, which is again a very interesting question. 4 number. A ball is dropped from height d above the ground. It hits the ground and bounces up to a height d by 2. Neglect the subsequent motion and air resistance. Its velocity v versus height h का ग्राफ बना. ये हुआ ऐसा आपका सवाल? सर ए है क्या? ये आएगा. How can you explain? I'll see at the screen. सर रूट का ग्राफ होगा और वेलोसिटी while coming down will be, if we take it as positive, then while going up it will be negative. And Generally हम उल्टा करते हैं. While coming down we take velocity negative, and while going up we take velocity positive normally. and while going it will be while going up the slope will be less. Why? Because go ahead, you are going in the right directions. Because the final velocity, because the displacement is less, right? So the final velocity will be less. Correct. Excellent. Correct answer is the first graph. Super. So इसको अगर आप एनालाइज करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये आपका सरफेस था, एक बॉल को आपने सरफेस से ड्रॉप किया है पर्टिकुलर हाइट से. दिस वाज माय सरफेस. यहाँ से बॉल को हमने ड्रॉप किया, ये हाइट आपका डी दिया, तो ग्राफ आपका हाइट के साथ बनाना है, राइट. एंड above the ground, so h height you have to take above the ground. Okay, h height हमारा ग्राउंड से लेना है. so, अगर आप यहाँ पे बॉल आ गया एंड इफ यू टेक दिस हाइट एज h, तो ये वाला हाइट कितना होगा? d माइनस ऑफ h. सो अगर आप काइनेमेटिक इक्वेशंस लिखोगे, so that will give us v square u square plus 2as. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, so v square is equal to 2g into t minus of h. So that implies v is equal to under root of
तो एक तो पॉइंट क्लियर है कि नेगेटिव रूट का ग्राफ होगा, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y इज इक्वल टू x का रिलेशन नहीं आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, वो फॉर श्योर है, ग्राफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ रूट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब पार्टिकल यहाँ से नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी वाज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी जैसे से नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी 0 था, and as it is coming down velocity will keep on increasing। टकराएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है ना। और इस एक्सिस पे आप वो हाइट h ले लो, तो क्या होगा इनिशियली, व्हाट विल हैपन इनिशियली, दैट वेलोसिटी पहले तो 0 था, फिर डिक्रीज कर गया, सॉरी इंक्रीज कर गया, लेकिन नेगेटिव साइड में इंक्रीज किया वेलोसिटी, तो यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज किया नेगेटिव साइड में, और यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ही ये टकराया, तो टकराने से पहले वेलोसिटी नेगेटिव था, आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल ऊपर जाने लगा, तो वेलोसिटी अब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो सडनली ग्राफ यहाँ से पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, लेकिन ये सिर्फ d/2 तक जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होगा टकराने के बाद, ग्राफ ओनली अप टू d/2 नॉट d। सो टकराने के बाद वेलोसिटी, टकराने से पहले वेलोसिटी नेगेटिव था, टकराने के बाद जस्ट वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एंड व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बिकम 0। समझ में आ गया? इसी का ग्राफ समझा बेटा कैसे किया हमने? इसी का ग्राफ समझा कि स्लाइड रिपीट अगेन? Done, sir. ओके, नाइस, आपको क्लियर है ग्राफ? तुम्हारा तो सही था। शुभम, Yes. ओके, आई रिपीट अगेन, हमने क्या डिस्कस किया, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट इट विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड, तो वेलोसिटी जैसे से नीचे आ रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। जब टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव साइड में, मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव साइड। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बॉल बाउंस करके ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और इट विल व्हेन इट विल गो अप वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में, लेकिन डिक्रीज करेगा, और फाइनली d/2 पे आके वेलोसिटी विल बिकम 0, क्योंकि d/2 हाइट तक ही जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? नाइस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा सवाल थे। क्लियर है सबको? गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरह आपको समझा ना कि किसका कैलकुलेशन? Now you solve this question number 5 and question number 6. 5 or 6 करिए, I'll hold for some time.
ओके, करें सॉल्व इसको. A particle. 1 minute. Okay, do it. Okay, करें solve. A particle starts sliding down a frictionless inclined plane. If Sn is the distance traveled by it, sliding down a frictionless inclined plane. If Sn is the distance traveled by it from time t is equal to n minus 1 second to n second, then Sn by Sn plus 1. Okay. कितने टाइम में दिया है? Sn to Sn minus 1 ना. So distance traveled by was Sn from t is equal to n. Am I clear? कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? Okay. How will you approach this? ये एक्चुअली nth सेकेंड का टाइम u plus a by 2 into 2n minus 1. nth सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. आपसे पूछा गया n plus 1 में, so ये हो जाएगा u plus a by 2 2 into n plus of 1, क्योंकि अभी n plus 1 सेकेंड में चलना है, minus of 1. So this implies Sn plus of 1 u plus a by 2 2n plus 2 minus of 1. So which implies the distance traveled in n plus 1 second is u plus a by 2 2n plus of 1. Now we have to assume that particle has started from rest. I guess they must be given in the question. Particle sliding down has
तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। सो Sn कितना हो जाएगा, a/2 इंटू 2n-1, और Sn+1 कितना हो गया, a/2 2n+1। सो आपको रेशियो में पूछा गया Sn/Sn+1 a/2 2n-1 by a/2 2n+1. So this terms will get cancelled. So that implies Sn/Sn+1 2n-1 by 2n+1. Naisa, was that answer? Yes. Excellent. इशिता, आपको आया था आंसर इसका? Yes, sir. Excellent बेटा, वेरी गुड। शुभम, तुम्हें यस नहीं हुआ? हुआ सर। ओके ओके गुड। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। ओके, सो विल शेयर द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। A body starts from rest at t is equal to 0. The acceleration time graph is shown in the figure. The maximum velocity attained by the body is. तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दे आर सेइंग अस कि बॉडी इनिशियली स्टार्ट्स विद द रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। सो वी हैव टाइम इधर, acceleration इधर, and the graph is something like this. Throughout acceleration positive, हाँ ये बात अलग है कि acceleration decrease हो रहा है, but acceleration positive ही। Now initially the acceleration was 10, time is 11, so this is 11 seconds. तो मुझे एक बात बताओ, acceleration को हम क्या लिखते हैं? Can we write acceleration as dv by dt? Rate of change of velocity will give us acceleration, and can we write dv as acceleration into dt? dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, which is final velocity minus initial velocity is equal to integration of a into t. What do we get after integration? इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलता है? Do we get area? So can I conclude from this that area of acceleration and time graph will give us what? Change in velocity. So final velocity minus initial velocity is equal to area of acceleration and time graph. So particle rest से start किया, initially 0 होगा, half into 11 into 10. This is 5. So velocity is equal to what? 55 meter per second, the maximum velocity. Naisa, do you have the answer? आपको आया था इस क्वेश्चन का आंसर? Yes. एक्सेलेंट। ऐसे किया कि कोई और लॉजिक यूज किया? The same. ओके, इसी तरह आपको आया था? yes, sir. ऐसे किया कि कोई और लॉजिक? Like this only, sir. ओके, शुभम, व्हाट अबाउट यू? यस सर गॉट इट। सेम वे? यस ओके, एक्सीलेंट सर, गुड क्वेश्चन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, सॉल्व करें इसको। द वेलोसिटी ग्राफ्स हमें दिया है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, they have given us the velocity displacement graph of particle moving along the straight line is shown in the figure. The most suitable acceleration versus displacement graph is, okay, तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिया उन लोगों ने। ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट graph of particle moving in straight line. कैसे ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करोगे? सो हियर वी हैव, इस एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट था, v नॉट x नॉट। तो आपसे क्या पूछा है? ट्रेस एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो हमें पूछा गया ट्रेस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चलो वर्कआउट करते हैं इसको। पहली बात, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो पहले इक्वेशन तो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। सो व्हाट विल बी द रिलेशन हियर? y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस ऑफ c। जब x मेरा 0 था तो वेलोसिटी v नॉट था, सो v नॉट हो जाएगा m इंटू 0 प्लस c। तो इसका इंटरसेप्ट हो गया v नॉट। जब x का वैल्यू x नॉट था तो वेलोसिटी मेरा 0 था, यहाँ पे, ठीक है। पहले तो ये तो लिख लेते हैं। सो रिलेशन बना फाइनली m इंटू एक्स प्लस v नॉट। ना वेलोसिटी 0 होगा जब आप x नॉट पे होगे, विच इम्प्लाइज मेरा जो स्लोप होगा वो माइनस ऑफ v नॉट बाई एक्स नॉट होगा। लॉजिकल बात है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा एंड देयरफॉर द स्लोप इज नेगेटिव। तो रिलेशन क्या फाइनली फॉर्म हुआ? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस ऑफ v। ये रिलेशन आया ना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का बाय यूजिंग द ग्राफ। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में कि एक्सेलरेशन चाहिए। सो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वी नॉट बाई डी टी। ये वी नॉट भी कॉन्स्टेंट है, सो डेरिवेटिव इसका भी 0 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन हो गया माइनस ऑफ वी नॉट इंटू एक्स नॉट टू वेलोसिटी प्लस 0। सो एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वेलोसिटी। नाउ इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी वी कैन राइट दिस, कहाँ गया, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। सो माइनस ऑफ v नॉट इंटू एक्स, सॉरी नॉट एक्स प्लस, ठीक है। सो अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो हमारा रिलेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर बाय एक्स माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। अभी इसका स्लोप पॉजिटिव आ गया और इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया। सो अगर हम फाइनल रिलेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन का, so v naught square by x naught square into x minus of v naught square by x naught. So y is equal to mx plus c. पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे इसको, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, सो इस एक्सिस पे यहाँ पे आप एक्सेलरेशन ले लो और इस एक्सिस पे आप x ले लो। इसका स्लोप नेगेटिव होगा माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस।
positive slope, negative intercept. Am I clear? तो नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा तो नीचे मैंने ऊपर कर दिया क्या? 1 सेकेंड, लेकिन अरे हाँ, मैंने ऊपर कर लिया। सो नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा तो यहाँ होगा पॉइंट, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन अ फोर, माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, और पॉजिटिव स्लोप चाहिए। देखो इसका आगे प्रोड्यूस करके विल गेट एक्यूट एंगल, मतलब पॉजिटिव स्लोप। सो दिस विल बी द ग्राफ। आ गया था ना ऐसा तुम्हारे ग्राफ? यस हैव यू मेड दिस रिलेशन? ये रिलेशन बना लिया था आपने? सर एक्चुअली मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन से किया था। नहीं, बार बार आप काइनेमेटिक इक्वेशन पे जा रहे हो। मेरा पॉइंट वही है कि हाउ यू हैव डिसाइडेड कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। बाय द वे, हमने इक्वेशन बना के देखा बाद में कि एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है ना। इज इट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ, है ना? इसी तरह शुभम, बोथ ऑफ यू समझ गया आपको पूरा कैलकुलेशन? Yeah, sir. शुभम आपको इक्वेशन नेक्स्ट ग्राफ। शुभम इक्वेशन और ग्राफ क्लियर है? Yes. ओके, सो गुड क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर ग्राफ बने। चलो नेक्स्ट वन। Okay, we'll go to this question number 8 now. नहीं 8 नहीं, 9 भी नहीं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। Question number 10, MCQ, more than one correct answer का first question and second question as well. हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। Okay. A particle is moving eastward with a velocity of 5 meters per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meters per second northward. The average velocity of the particle, average acceleration of in the time, this time is okay. I have here north, south, east,
west. So initially क्या कर रहा है, particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. इस डायरेक्शन में जा रहा है, and suddenly the velocity changed to 5 meter per second in the northward directions in 10 seconds. So average acceleration पूछ रहा है. Just for the simplicity, let me have this as my x-axis and this as my y-axis. तो just initial velocity कितना होगा, 5 cap, because initially it was going in the eastward direction, so this is my x-axis, तो 5 cap meter per second. फाइनल अगर आप निकालोगे तो ये y डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन को मैंने y पकड़ा है, तो 5 cap मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है, पहले तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी फाइनल माइनस ऑफ वेलोसिटी इनिशियल. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में बाय द वे, ये हो जाएगा 5 cap माइनस ऑफ 5 cap मीटर पर सेकेंड. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आई हैव टेकन 5 cap, फाइनल मेरा 5 cap था, तो यही मेरा चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा. राइट. सो इसका चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दो. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड, है ना. आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया एवरेज, so average acceleration will be equal to change in velocity by time, which is what, 10 seconds. So average acceleration 5√2 by 10, so that implies average acceleration will be 1/√2 meter per second square. नाइस आंसर आया था आपका. So more than one correct answer. हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मोर देन वन बोला तो सारे सब एक से ज्यादा आंसर ही करेक्ट होगा, एक भी हो सकता है. इज इट क्लियर. बट वो ये तो हुआ, मैं सारे ऑप्शंस को चेक करता हूँ. ये ऑप्शन क्लियर है. Yes. ओके, सो आई विल गो चेक द अदर ऑप्शंस फॉर दैट. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, होल्ड ऑन. फाइन. सो 0 ऑब्वियसली नहीं, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा. बट डायरेक्शंस भी हमें चेक करना पड़ेगा कौन से डायरेक्शन में. सो A cannot be there, D and E cannot be there, so we have to discuss about B and C direction wise. तो चेंज इन वेलोसिटी बाय द वे कितना था, वेलोसिटी फाइनल माइनस, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को लिखोगे तो ये था 5 cap माइनस ऑफ 5 cap. अगर हम डायग्राम में चले तो I cap मेरा ईस्ट में था, तो माइनस I cap वेस्ट में होगा, और वो J cap ही था. सो बेसिकली ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉर्थ और वेस्ट में होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन को मैंने I cap पकड़ा था और यहाँ पे मेरे पास -5 cap है. सो -5 cap का मतलब हो गया नॉर्थ और ये वेस्ट. तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, द रिजल्टेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना. सो एक्सेलरेशन जो आपको मिला यहाँ से एवरेज, which we can say from here, that average acceleration will be 1/√2 meter per second square in which direction, north west direction. This is the final answer. शुभम, आपको समझ में आया डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया. Okay, see, change in velocity was 5 cap minus 5 cap. Now J cap is here along north direction, so that will remain same, but मैंने I cap east में पकड़ा था,
but I am getting here for change -5 i cap. So obviously वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ईस्ट को मैंने i cap पकड़ा तो वेस्ट -i हो जाएगा. सो दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी, ये नेगेटिव वाला. तो चेंज आपके इधर ही होगा ना, ये और एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट वी गो हियर. Okay, sir. Got it. सीता, इज इट क्लियर नाउ? Yeah, sir. ऐसे समझ में आ गया डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कैसे बोला मैंने? Yes. हैव इट कैलकुलेटेड द डायरेक्शन? आपने डायरेक्शन कैलकुलेट किया था इसका? Direction I got, magnitude I. Fine. So the correct answer is north west. So B option is right. Okay. Question number 2. Correct question number 2. What they're saying is a particle of mass m moves on the x-axis as follows. It starts from rest at t is equal to 0 from the point x is equal to 0. Okay. सोचना पड़ेगा अच्छे से क्वेश्चन को. So here I have, this is my x. So यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है आपने, यहाँ से स्टार्ट किया. So they are saying us the question कि a particle at rest a particle of mass m kg moves on the x-axis as follows. It starts from rest at t is equal to 0 from x is equal to 0 and comes to rest at t is equal to 1 at the point x is equal to 1. Okay. So फिर यहाँ से start किया इसने. So from here they have started the motion. और वापस से रेस्ट में आ गया at x is equal to 1, t is equal to 1. It came to rest. Okay, fine. No other information is available about the motion at intermediate time t 0 to 1 के बीच में. If alpha denotes the instantaneous acceleration of the particle. हाँ बोलो क्या होगा? Which option will be right बेटा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन पहले समझ में आया, t इज इक्वल टू 0 पे उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया मूव करना और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे वो x इज इक्वल टू 1 मीटर पे आके रुक गया और बिटवीन 0 सेकेंड्स टू 1 सेकेंड के बीच में और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अल्फा कैनॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम t इन द इंटरवल 0 to 1. हाँ सही बात है. अल्फा अगर पॉजिटिव रहता है हर टाइम पे तो पार्टिकल तो आगे बढ़ता जाता है ना. अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव होता, बिकॉज पार्टिकल आगे जा रहा है, सो अगर पार्टिकल आगे जा रहा है इसका मतलब वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा.
बिकॉज जिधर वेलोसिटी होता है पार्टिकल उधर ही जाता है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में होता तो वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता, हाउ इट विल कम टू रेस्ट हियर? तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, ए ऑप्शन बराबर है। अल्फा कैनॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल इंटरवल्स, बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा कैनॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन द पाथ, ऐसा होगा क्या? अल्फा का मैग्नीट्यूड 2 को एक्सीड नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इट कैन ऑल्सो एक्सीड कर सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ, ऐसा जरूरी है क्या? अल्फा 0 से कम, 4 से कम भी हो सकता है, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अल्फा का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो वी कैनॉट प्रिडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। डी ऑप्शन देखिए, अल्फा मस्ट चेंज द साइन ड्यूरिंग मोशन बट नो अदर assertion. Alpha must change sign during the motion but no other acceleration होना चाहिए, can be made by information given। अच्छा, assertion can be made about with the information given, सही बात है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होगा तभी पार्टिकल ने स्टार्ट किया था मूव करना, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी आ ही नहीं सकता। तो एक्सेलरेशन पहले आप दोगे तभी तो पार्टिकल ने स्टार्ट किया था ना मूव करना, और फिर सडनली वो रुक गया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ने डायरेक्शन अपना बदला है। तो ये तो श्योर शॉट है कि एक्सेलरेशन विल चेंज इट्स डायरेक्शन बिटवीन 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसा बराबर है? समझ में आया पॉइंट? Yeah. हैव यू गॉट द आंसर? समझ गया था ये दोनों पॉइंट? Yeah. ओके, सो वी कैनॉट डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया वो सफिशिएंट नहीं है मैग्नीट्यूड डिसाइड करने के लिए, बट हाँ डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है अल्फा का, बिकॉज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तभी तो पार्टिकल ने मूव किया है, और बाद में वो रेस्ट में आ गया, तो एक्सेलरेशन मस्ट चेंज इस डायरेक्शन। तो पहले पार्टिकल ने स्टार्ट किया तो एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी के फेवर में होगा, फिर पार्टिकल रुक गया, मतलब एक्सेलरेशन विल बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस पूरे पाथ में एक्सेलरेशन मस्ट हैव चेंज इट्स डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? Is it clear properly? Isita and Shubham, is it clear? Yes. Okay, Yes, sir. ठीक, good, fine। अच्छा, विल स्टॉप हियर ओनली, आगे हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरा एक सजेशन होगा कि इसका जो जेई मेंस का आर्काइव है, एडवांस का नहीं, एडवांस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका, जेई मेंस का जो आर्काइव है ये वाला, ये जेई मेंस का आर्काइव पूरा कंप्लीट करो सॉल्व करके। मैं ऐसा समझ में आया? प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। Yeah. जेई मेंस का आर्काइव, अभी स्कूल एग्जाम नहीं है ना आप लोगों को? नहीं sir, होता है। ठीक, इसी था आपका स्कूल एग्जामिनेशन। Sir, can you repeat? आपको स्कूल में एग्जाम भी है अभी? अभी नहीं है सर, सितंबर में। ओके फाइन। सो मेरा एक सजेशन है कि ये जो जेई मेंस का आर्काइव है ना, आर्काइव मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो ये जेई मेंस का जो पीवाई क्यूज है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये आप पूरा सॉल्व करो, हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? एंड कमिंग सैटरडे विल हैव वन मोर टेस्ट, आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग टेस्ट एंड ऑल। इज इट फाइन? Yeah. चलो ठीक है, विल क्लोज फॉर टुडे, बाय। Bye.